जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आमने सामने हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई कहानी है हम बार बार महसूस कर रहे हैं, बल्कि अब इस बेबसी का इजहार खुलकर किया जाने लगा है। हम एलजी जो आज मीटिंग भी ले रहे थे, सिक्योरिटी रिलेटेड समझ में आता, अक्सर उनकी बात सुनते हैं कि मुझसे मांगिएगा, मैं सिर्फ आपको पुलिस दे सकता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन पर्दे के पीछे बदमाशी चलती है, हर जगह होता है। यही सूरत हाल हमने बाकी जगहों पर देखी कि चीफ मिनिस्टर भी बदमाशियाँ करता है, एलजी भी नहीं सुनता। तो इस दरमियान आम लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसका असर क्या है निचली सतह पर? आज जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया मैं उस पर जाऊंगा। जम्मू के अंदर मीटिंग होती है, डीडीसी चेयरपर्सन मीटिंग बुलाते हैं काउंसिल की, खुद डीडीसी के मेंबर्स और यहाँ तक कि बीजेपी के वो एमएलएज जो मजबूरी में खामोश हैं, वरना पता उनको भी एक अफसर काम नहीं करने दे रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और अगर जो आ भी रहे हैं वो डेटा पिछला प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंबर्स को पता ही नहीं कि हम क्या तखमीना लगाएं, क्या अंदाज़ा लगाएं, क्या खराजात हैं। कल को जाकर हमने डिटेल वाइज डिस्कशन करना है, किस तरक्की के काम की बात हम करेंगे। टी एस टोनी साहब मीटिंग से उठ गए, हमने कल ही आपके सामने रखी थी बात, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विक्रम रंधावा साहब और अरविंद गुप्ता साहब एक एक करके सारे साहब जो है वहाँ से उठना शुरू हुए। बताने का मकसद ये कि टॉप लेवल पर फ्रॉम द हेल्म ऑफ अफेयर्स, निचली सतह पर बहुत मुश्किलात हैं। आज ये जम्मू कश्मीर सारी इस दौर से गुजर रहा है, और सब जगह अगर सब कुछ ठीक होता तो उमर साहब ये कहने पर मजबूर ना करते कि मरकज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, यहाँ ठीक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ जिसका वो खुलासा कर रहे हैं। बाकी आप लोगों पर ज़्यादा मैं बिल्कुल कहानी अपनी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर बकौल उमर अब्दुल्ला, एज़ पर उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट, हर काम में मुदाखलत कर रहे हैं। मीटिंग्स अलग से बुला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को सुनिए। Being approved, government of India has been sort of well disposed towards the government of Jammu and Kashmir and towards Jammu and Kashmir. So no complaints there. Unfortunately, the same has not been true in terms of our working relationship with the Lieutenant Governor. In spite of the fact that he has on numerous occasions publicly said that he is only responsible for security and law and order and everything else is the domain of the elected government, that has not translated on the ground. I can name institutions that should ordinarily have transferred to the elected government that haven't so far. Can you give us some examples of things that you wanted to do but couldn't? Well, the J&K Power Development Corporation. I am the power minister. It's a corporation that is part of the ministry, but the Lieutenant Governor is the chairman of that corporation. Shouldn't be. I was chairman of that corporation when I was chief minister. We have two universities, Jammu and Kashmir. I'll call them state universities, Baba Ghulam Shah Badshah and Islamic University of Science and Technology. The statutes of those universities meant that the chief minister was chancellor. After the elections, these universities should have transferred to the elected government. They haven't. He continues to be chancellor of those two universities. The Cultural Academy, he is chairman of the Cultural Academy, even though the culture department is with the elected government. The Director Information, he has appointed an IAS officer, even though the post is a JKAS, J&K Administrative Services cadre post. But to deny us sort of control over the information department, he has put his own person in there. And most recently and surprisingly, I am the tourism minister. Now the tourism development authorities in various places should either be headed by me or somebody nominated by me. But he continues to hold on even to tourism development authorities. He's called a meeting of the Gulmarg Tourism Development Authority on the 21st of December. Now please tell me, somebody who says he is only responsible for security and law and order, what business does he have holding a tourism development authority? It is essentially interfering in the role of the elected government. But you उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जम्मू कश्मीर के साथ फ्रॉड, धोखा और गलत बयानियां बनाया जा रहा, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, और ये हुआ है। ईमानदारी के साथ जवाब दिया है। रेस्ट उमर अब्दुल्ला साहब उतनी ही बात करें जितना वो भी जानते थे कि हम जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आप यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे थे तो इतने वादे नहीं करने चाहिए थे जो आज आपके सर चढ़कर बोल रहा है। मगर दिल्ली को भी समझना पड़ेगा कि शायद इस हिसाब से काम ना चले, और एलजी जहां उनका काम ही नहीं वहीं दखल दे रहे हैं, और फिर पब्लिकली
मुतअद्दिद बार जो बातें करते हैं वो झूठ है, असल में सरकारी झूठ आप उसे कह लीजिए। तो ये सारा सिलसिला आज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की बातें सुना रहा है।